Dear students, today we are going to discuss eddy currents, which is also known as Foucault current. Then question is, what is eddy current? Before coming over this very eddy current, first I want to recapitulate electromagnetic induction. We used to say electromagnetic induction is the phenomenon of induction of electric current in a coil due to change in magnetic flux crossing through it, passing through it. कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास कोई कॉइल है, अगर आपके पास लेट अस सपोज यह कॉइल है और यह आपका एक मैग्नेट है, it is your north pole, it is your south pole, then due to this very magnet there will be some number of field lines which will cross through the loop, and when there will be relative motion between magnet and coil, then the number of field lines which will cross through the coil, that will change. Magnetic field which will cross through the coil, that will change, and as B is changing, as number of field lines is changing, so flux will also change. और हमने यह पढ़ा है कि जब किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल में ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसके चलते करंट इंड्यूस होता है. राइट? क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल हैपन when in place of loop there will be plate? What will happen when in place of loop there will be plate? Then we used to say again, when in place of loop there will be plate, and there will be relative motion between magnet and plate, then the number of field lines which will cross through the plate, that will change. So flux crossing through the plate will also change. So there should be electromagnetic induction. It means that there will be induced EMF, and due to that very induced EMF there will be induced current. This very induced current which appears in case of plate or in a plate due to change in magnetic flux crossing through it, is known as eddy current. यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है किसी प्लेट में फ्लक्स के चेंज होने के चलते, वही करंट जो इंड्यूस्ड करंट होता है, वही करंट एडी करंट कहलाता है. और इस करंट के बारे में बताने वाले सबसे पहले मिस्टर फॉकल थे. दैट्स वाई इन ऑनर ऑफ हिज नेम दिस वेरी एडी करंट इज ऑल्सो नोन एज फॉकल्ट करंट. राइट? It means that we can say current induced in plates due to change in flux crossing through it is known as eddy current. अगर किसी प्लेट से फ्लक्स चेंज होगा तो उसके चलते जो करंट इंड्यूस होगा, दैट वेरी करंट विल बी एडी करंट, विच इज आल्सो नोन एज फॉकल्ट करंट. राइट? This current is induced in the plate in the form of, then next question is कि why do we call it as eddy current? ये फॉकल्ट करंट तो मान लिया क्योंकि इसको बताने वाले इसका यू कैन से इन्वेंटर और डिस्कवरर मिस्टर फॉकल्ट थे, इसलिए उनके ऑनर में हम लोग फॉकल्ट करंट कहते हैं. बट why do we call it as eddy current? तो बाबू इसके पीछे रीजन यह दिया जाता है. when you will consult dictionary, when you will see Hindi meaning of eddy, then it is given that round. It means that round means like भंवर. जब पानी में भंवर आता है तो राउंड मूव करता है ना. लाइकली इन द सेम वे जब प्लेट में करंट इंड्यूस होगा तो वह भी राउंड के शेप में मूव करेगा. एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन दिस वेरी राउंड सर्कल इज नोन एज एडी करंट. राइट? दिस करंट इज इंड्यूस्ड इन द प्लेट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. That's why it is known as
eddy current. That's why it is known as eddy current. And in honor of his discoverer, Mr. Foucault, it is also known as Foucault current. Right? It is also known as Foucault current. चलिए हमने यह मान लिया कि जो है ईडी करंट इंड्यूस होगा. देन क्वेश्चन इज दिस कि प्लेट में जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल मूव इन सर्कल, देन दैट वेरी मूवमेंट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. देन वी यूज टू से direction will follow Lenz law, means direction of induced current will be according to Lenz law. Right? Next thing is, what are your different examples? Where do we observe this very eddy current? तो मैं जो हूँ सबसे पहला जो एग्जाम्पल आ रहा हूँ, जरा सा मैं एक 11th के कंटेंट पर आ रहा हूँ. आपने यह पढ़ा था कि जो है आपने यह पढ़ा था कि अगर किसी पेंडुलम बॉब को हम लोग रूफ से हैंग करा दें या नहीं तो जो है स्टैंड से हैंग करा दें, राइट, स्टैंड से हैंग करा दें और इसको अगर ऑसिलेट कराएं तो यह ऑसिलेट करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है अबाउट मीन पोजीशन. और ना आपने यह पढ़ा है. इसी से मैं एग्जांपल लूँगा अभी जो है आपका. इन दिस वेरी ऑसिलेशन व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि अगर बॉब को जो हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में ले जा करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, यह ऑसिलेट करता है अबाउट मीन पोजीशन. जब यह मीन पोजीशन पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और फिर जब राइट और इस वेलोसिटी के चलते यह राइट डायरेक्शन में मूव करता है और राइट जाते जाते इसकी वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो जाती है. लेफ्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी, राइट एंड पर वेलोसिटी जीरो और बीचों बीच वाला मीन पोजीशन पर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम. इसका मतलब क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है देन काइनेटिक एनर्जी विल बी आल्सो मैक्सिमम. मतलब एक्सट्रीम एंड पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा. और ना फिर हम लोग ये कहते हैं कि अगर मीन पर मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, एक्सट्रीम पर आकर के काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया तो काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ. देन वी यूज टू से कि अगर इसको आप एक लेवल लेंगे तो इससे यह ऊपर लेवल पर है और हम लोग यह कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा. इट मीन दैट इस लेवल का काइनेटिक एनर्जी लगता है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है. इट मीन दैट ड्यूरिंग दिस वेरी ऑसिलेशन conversion of energy from kinetic to potential takes place. It means that you can say this very oscillation takes place according to law of conservation of energy. Right? अब फिर इसमें एक बात उठता है, यह होता है according to law of conservation of energy, but we used to say if there will be presence of damping forces in this region then oscillation of पेंडुलम बॉब विल बी सीज्ड. धीरे धीरे इसका ऑसिलेशन कम होता जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और अल्टीमेटली यह क्या हो जाता है, रुक जाता है ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस. नाउ हेयर वी आर गोइंग टू से कि अगर जो है इस बॉब के जगह अगर हम लोग यहाँ पर प्लेट रख दें तो भी ये ऑसिलेट करेगा, राइट. और अगर इस बॉब के जगह पर प्लेट रख दिया आपने और अगर इस प्लेट को हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराएं देन व्हाट विल हैपन. सी हियर, देखिए यहाँ जरा सा ध्यान से, हमने यहाँ पर एक यू शेप्ड मैग्नेट लिया है, हमने यहाँ पर एक यू शेप्ड मैग्नेट लिया है, राइट. नॉर्थ पोल इज दिस एंड साउथ पोल इज दिस. तो अगर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसी बीच वाले रीजन में हम लोग जो है इस प्लेट को ऑसिलेट कराएंगे. ऑसिलेट करना चाहिए. व्हाट वी विल सी हियर कि यहाँ पर जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लेट में जो है एडी करंट का प्रोडक्शन होगा, एडी करंट का इंडक्शन होगा. और अगर यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो जितनी देर में यह बॉब मेरा रुकता उससे जितनी देर में यह मेरा प्लेट रुकता जो है उससे और जल्दी जो है यह प्लेट रुक जाएगा. इट मीन दैट यहाँ जो ईडी करंट होगा दैट विल बिहेव लाइक अ डैम्पिंग फोर्स, राइट.
कैसे? वंस अगेन कम हेयर। अभी आपने कहा कि हमने एक यू शेप्ड मैग्नेट लिया है, हुज नॉर्थ पोल इज दिस एंड साउथ पोल इज दिस, हुज नॉर्थ पोल इज दिस एंड साउथ पोल इज दिस, राइट। अब जरा सा देख लो बाबू, अगर यह नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, देन व्हाट विल हैपन? आपने यह पढ़ा है, ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ड्यू टू ए बार मैग्नेट field lines emerge from the north, outside the magnet it emerges from the north and enters at the south, and inside the magnet it is from south to north. पढ़े हैं? In the similar manner what will happen here? Here magnetic field lines will emerge from north and enter at the south, right? नॉर्थ से इमर्ज करेगा और साउथ में जाकर के इंटर करेगा, लाइक इन दिस मैनर। और आपने यह भी पढ़ा है, जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट से दूर होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाएगा, फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती जाएगी। वी हैव स्टडीड अबाउट दिस वेरी फैक्ट और नॉट। इट मीन दैट यहाँ पर बाबू क्या बात हो रहा है? सी हियर, दिस वेरी प्लेट इज ऑसिलेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और तो और यू कैन से दिस वेरी प्लेट इज ऑसिलेटिंग इन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जब प्लेट तुम्हारा लेफ्ट से राइट की ओर चलेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। जब एकदम मीन पोजीशन में, मीन्स कह दो कि पोल के पास पहुंचेगा, तो जो है उसके बाद जब राइट साइड में जाने लगेगा तब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लगेगा, और नॉट। इट मीन दैट नाउ योर प्लेट विल बी इन मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है, राइट, एंड दैट वेरी मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स which will cross through the plate, that will vary or not, and when that will vary, it means that flux associated with the plate will vary. Then according to theory of eddy current, there will be induction of eddy current in the plate or not. होगा या नहीं होगा? Yes, there will be induction of eddy current. Why? Because plate is in motion in a variable magnetic field. राइट? या तो आपने देख लिया जो है कि इसमें जो है एडी करंट का जो है प्रोडक्शन इंडक्शन होगा, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस, इस एडी करंट के इंडक्शन से क्या होगा? हमने अभी आपको कहा था, ड्यू टू दिस वेरी एडी करंट विल बिहेव लाइक ए डैम्पिंग फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो जितनी देर में आपका प्लेट रुकता उससे कम देर में यह रुक जाएगा, प्लेट विल कम टू स्टॉप और नॉट। हाँ, तो जरा सा उसको जानने के लिए अब नाउ कम ओवर हियर, जरा सा देखो तो, व्हेन योर प्लेट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब पोल तक आएगा उस समय क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। इट मीन दैट द फील्ड लाइंस विच विल क्रॉस थ्रू द प्लेट दैट विल इंक्रीज, सो देयर विल बी इंक्रीज इन फ्लक्स, सो देयर विल बी एडी करंट। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ एडी करंट? या एडी करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप कह देंगे डायरेक्शन ऑफ एडी करंट विल बी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इट मीन दैट इट विल फॉलो लेंज लॉ। और आपने लेंज लॉ क्या पढ़ा है? इंड्यूस्ड करंट अपोजेज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड और इट हैज प्रोड्यूस्ड। जिसके चलते यह प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करता है। तो किसके चलते प्रोड्यूस हुआ है? यू कैन से ड्यू टू राइट मोशन, ड्यू टू लेफ्ट टू राइट मोशन, और ड्यू टू इंक्रीज इन फील्ड लाइंस, ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स और नॉट। तो इसी को अपोज करेगा। आई एम कमिंग ओवर इंक्रीज इन फ्लक्स मीन्स इंक्रीज इन फील्ड लाइंस, राइट। इंक्रीज इन फील्ड लाइंस के चलते हो रहा है, तो उस इंक्रीज इन फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, मीन्स फील्ड लाइंस को अपोज इंक्रीज होने नहीं देगा, यही ना। यह मैग्नेट के चलते जो फील्ड लाइन जो प्लेट को क्रॉस कर रहा है फ्रॉम टुवार्ड्स यू टुवार्ड्स मोबाइल और टुवार्ड्स ब्लैक बोर्ड, फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है एंड फील्ड लाइंस इज इंक्रीजिंग। करंट का डायरेक्शन दैट विल राउंड, लेकिन दैट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बबुआ जरा ध्यान से देखो तो, यहाँ पर फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है तुम्हारे प्लेट को। योर फील्ड लाइन्स आर क्रॉसिंग द प्लेट फ्रॉम योर साइड टुवार्ड द मोबाइल, राइट।
तो अब क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट के चलते जो फील्ड लाइंस होना चाहिए वह उसके इंक्रीज होने के अपोज करेगा, मीन्स दैट शुड बी फ्रॉम मोबाइल टू यू। देन अकॉर्डिंग टू दैट वेरी थ्योरी, अगर उसके चलते फील्ड लाइंस फ्रॉम मोबाइल टू यू होगा तो करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नॉट, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। एंड यू टेल मी, जैसे अब जरा देखो, ये तो हो गया कि इंड्यूस्ड करंट होगा वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, उस एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन कैसे होगा, या उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के चलते व्हाट विल टेक प्लेस हियर, व्हाट विल हैपन हियर, राइट। तो अब जरा सा बाबू, लेट अस सपोज इसमें एडी करंट को जो राउंड कह रहा हूँ इसको रेक्टेंगुलर में बना दे रहा हूँ थ्योरी को समझने के लिए। देन नाउ इट विल हैव 4 पार्ट्स, this, right? First come over this top and below. ऊपर, सबसे पहले ऊपर वाले पर आइए, तो करंट तो इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यू कैन से इन एन इमेजिनरी वायर करंट इज फ्लोइंग, और आपने यह पढ़ा है व्हेन वी प्लेस ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दैट वेरी फोर्स, फोर्स जो होगा F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, इट मीन दैट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। नाउ कम ओवर लोअर पोर्शन, इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, आई एल क्रॉस बी, इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, वही आई वही एल वही बी, सो बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ प्लेट पर लगेगा, जितना नीचे से फोर्स लग रहा है प्लेट पर उतना ही राइट से, both will cancel each other, it means that resultant of these two will be 0. Now come over right and left current, come over right current, इसका डायरेक्शन किधर होगा, then it will be equal to F equal to IL cross B, it will be along this direction, और इस पर F equal to IL cross B, it will be along this direction, वही I वही B वही L, बट हेयर बी विल वेरी, जो लेफ्ट पोर्शन पर होगा बी कम होगा और जो राइट पोर्शन पर है उस पर बी अधिक होगा। इट मीन दैट राइट पोर्शन पर फोर्स अधिक लगेगा, लेफ्ट पोर्शन पर फोर्स कम लगेगा, बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड, सो रिजल्टेंट विल नॉट बी जीरो, रिजल्टेंट विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, जब तुम्हारा प्लेट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, मैग्नेट के पोल तक जो है लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, उस समय जो है नो डाउट देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ईडी करंट, एंड ड्यू टू दिस वेरी ईडी करंट योर प्लेट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवार्ड्स लेफ्ट। तो जब प्लेट पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा देन व्हाट विल हैपन, इट्स स्पीड विल डिक्रीज, और जब स्पीड डिक्रीज होगा इसका मतलब मीन पोजीशन पर जितना वेलोसिटी होना चाहिए उतना गेन नहीं कर पाएगा। तो जब उतना वेलोसिटी मीन पोजीशन पर गेन नहीं कर पाएगा, देन यू टेल मी जितना दूर जा सकता था क्या उतना दूर जा पाएगा राइट डायरेक्शन में, नो नहीं जा पाएगा, कुछ पहले ही रुक जाएगा। केवल इतना ही नहीं होगा माय डियर, जब राइट में जाने लगेगा उस समय अगेन फील्ड लाइंस, फील्ड विल चेंज, field will decrease, field lines will decrease, flux will decrease, again there will be induced EMF, means again there will be eddy current, and here now in this very situation again eddy current will oppose its motion, जब मोशन को अपोज करेगा इसका मतलब कि डिक्रीज होने के, यहाँ पर डिक्रीज होने के बाद भी जितना जा पाता वो भी नहीं जा पाएगा और पहले रुक जाएगा, राइट। और जब रुकेगा तो देन नाउ अगेन इट विल कम बैक, पीछे की तरफ मुड़ेगा, अब पीछे की तरफ मुड़ेगा तो फिर ईडी करंट जो है, फिर ईडी करंट का प्रोडक्शन होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर इसके मोशन को अपोजिशन मिलेगा, और फिर जिन मीन पोजीशन पर यहाँ से आने के बाद जितना आना चाहिए था वो भी नहीं आ पाएगा और कम वेलोसिटी आएगा, तो इधर और कम जाएगा, और जब इधर जाने लगा तो फिर ईडी करंट का प्रोडक्शन होगा, वो और रोकेगा और कम। इट मीन दैट इस तरह से बहुत जल्दी चलते यह रुक जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल कम टू स्टॉप। इट मीन दैट दिस वेरी ऑसिलेटिंग प्लेट, मोशन ऑफ दिस वेरी ऑसिलेटिंग प्लेट विल बी सीज्ड इन a very small interval of time due to change in magnetic flux passing through its surface.
राइट, सही। हमने यहाँ पर यह भी देखा एडी करंट का प्रोडक्शन भी हो रहा है और इसके चलते मोशन मेरा सीज भी हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन वी यूज टू से ऑसिलेशन ऑफ द हैंगिंग प्लेट, oscillation of the hanging plate in a variable magnetic field gets seized in a very small interval of time because here eddy current behaves like a damping force, right? चलिए हमने यहाँ पर एक बात मान लिया कि देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, इंडक्शन ऑफ एडी करंट, और उसके चलते इसका मोशन बहुत जल्द सीज होगा, राइट? ये तो कहेंगे देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ करंट और नॉट। अब जरा सा देखना, जो भी करंट का प्रोडक्शन होगा अगर हम लोग इसमें टूथेड व्हील जैसा कटिंग कर दें, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, then path of current will increase, and when path of current will increase, then no doubt resistance will, opposition will also increase, current will, resistance will also increase, so value of current will decrease. It means that when we will use plate, such type of plate having toothed wheel, the amount of induced current which will get induced in the plate, that will decrease, so motion will be seen in more interval of time, means time of interval will increase, right? Now come over another example. Another example is motion of plate in a magnetic field. Another example is same type of example. Motion of a plate in a magnetic field. See this very figure. In this very region, there is a magnetic field. In this very region, there is a uniform magnetic field directed towards the mobile or directed towards the blackboard, right? अब जरा सा let us suppose in this very field we have placed a plate and now we are pulling our plate. हम लोग अपने प्लेट को राइट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। जब हम लोग अपने प्लेट को राइट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, then what will happen? See here, the number of field lines which is crossing through the plate, that will decrease or not? And when that will decrease, then flux will decrease or not? Here flux is decreasing, so there will be induced current. Question is this, what will be direction of induced current? या induced current का direction किधर होगा? Then simply we used to say direction of induced current will be according to Lenz law. Will be according to Lenz law. तो Lenz law के अकॉर्डिंग होगा। तो अब जरा सा देखिए तो किधर होगा। Lenz law क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ induced current will be in such a manner that it always opposes the cause due to which it is produced, it has produced. जिसके चलते यह प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करता है। तो किसके चलते प्रोड्यूस हुआ है? ड्यू टू मूवमेंट टुवर्ड्स राइट, ड्यू टू डिक्रीज इन फील्ड लाइंस, ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? राइट का मूवमेंट अपोज होना चाहिए, राइट डायरेक्शन का मूवमेंट अपोज होना चाहिए। और राइट डायरेक्शन का मूवमेंट अपोज तभी होगा जब लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगे, और नॉट। इट मीन दैट लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगे, इट मीन दैट करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि जो है प्लेट पर एक लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगे। कैसे? आई विल टेल यू। In term of field lines, here field lines is decreasing, so direction of induced current should be in such a manner, इस तरीके से होना चाहिए कि डिक्रीज इन फील्ड लाइंस को अपोज करे, मीन्स फील्ड लाइंस को नंबर को डिक्रीज ना होने दे। मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को मेंटेन रखे, मीन्स इंड्यूस्ड करंट के चलते जो फील्ड लाइंस होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो कैसा होना चाहिए? By using right hand we can say direction of current should be clockwise direction, should be in clockwise direction, right? तो clockwise direction में होगा तो क्या होगा? उसी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होगा, तो जो घट रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट अवे फ्रॉम द फील्ड वह मेंटेन हो जाएगा, राइट?
अभी आपने कहा फील्ड के टर्म में कि फोर्स लगना चाहिए जो है, क्योंकि मोशन जो है, मोशन के चलते, फोर्स के चलते ही अब ये हुआ है। तो ज़रा सा देखिए, तो अगर करंट आपका जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या फोर्स लगेगा? तो ज़रा सा अगेन मैं इसको 4 पार्ट्स में बांट दे रहा हूँ, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। थिंक ओवर दीज 2 पार्ट्स, फील्ड विल बी सेम। यूज फॉर्मूला F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इस पर फोर्स इधर होगा, इस पर F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इस पर फोर्स इधर होगा। I is same, B is same, L is also same, so both will cancel each other. Net force over the plate in vertical direction will be 0. Now come over these two ends. F equal to IL cross B, this part will experience force along this direction. F equal to IL cross B, this part will experience force along this direction. I is same, L is same, but B is not same. B मेरा सेम नहीं है, और जब B मेरा सेम नहीं है, sorry, here current is in clockwise direction, sorry, once again come over this very part, once again come over these two parts. Here current is in clockwise direction, so this very upper portion will experience force in upward direction, lower portion will force experience in downward direction. Yeah, here F equal to IL cross B, I is same, B is same at both positions, and L is also same, so force will be also same, both will cancel each other, net force will be 0. Now come over these two parts, F equal to IL cross B, F equal to IL cross B, this part will experience force along this direction. F equal to IL cross B, this part will experience force along this direction. No doubt I is same, L is same, but B is not same. B same मेरा नहीं है, here B is more, here B is less, so this force will be more and this force will be less. So net force will be along this direction, means overall we can say our plate will experience force along left direction. क्या हम लोग कहे थे करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि जिसके चलते यह प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा। किसके चलते प्रोड्यूस हुआ है? ड्यू टू मोशन टुवार्ड्स राइट डायरेक्शन। तो मोशन टुवार्ड्स राइट डायरेक्शन के मोशन को अपोज करने के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है, राइट। And you can say as force is acting towards left direction, it means that to maintain motion of this very block, this very plate, we have to apply force towards right direction, right? We have to apply force towards right direction. अगर फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती तब तो एक बार हम लोग मूव करा देते, और अगर यह फोर्स नहीं लगता तो एक बार मूव करा देते, मूव करते रहता, फील्ड लाइंस बदलते रहता, फ्लक्स बदलते रहता, करंट इंड्यूस होते रहता, बिना कुछ किए हमको करंट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलते रहता। रियली होता क्या है? यह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है ड्यू टू दिस वेरी फोर्स, हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसके चलते मीन्स यू कैन से वर्क डन हुआ, एंड दैट वेरी वर्क डन इज अपियरिंग हेयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट मीन दैट यू कैन से अगेन, यू कैन से वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी at the cost of, means this very production of induced EMF or induced current or ED current takes place according to law of conservation of energy, right? Okay, thank you.